Hello kids, welcome to class 8 math session. We are doing chapter 5 about data handling. So, in the previous session you have learned about a lot about how do we consider the pie chart. Based on the pie chart we can give answers to many type of questions, and then we can tell about the maximum liking, minimum liking, maximum expenditure, minimum expenditure, and अगर हमें थोड़ी और वैल्यूज को मालूम होता है तो इवन वी कैन फाइंड द अननोन वैल्यू, जैसा वी हैव डन द सम इन द प्रीवियस सेशन. हमें नंबर ऑफ पीपल मालूम थे कि वो उसके इक्विवेलेंट कितने हैं 20% के, एंड देन वी कैन काउंट फॉर द टोटल नंबर ऑफ पीपल. सो वी हैव लर्नड अ लॉट about this. So today we will start one exercise, और इसमें what are we going to do? We are going to read the question, solve the question and will try to find out the answers. Moving further, let us read the first question. ये क्वेश्चन है जिसमें है a survey was made to find the type of music that a certain group of young people liked in a city. Adjoining pie chart shows the finding of this survey. So ये जो हमने सर्वे करा इसमें हमने देखा कि लाइट म्यूजिक वॉज लाइक्ड बाय 20% ऑफ पीपल. लाइट म्यूजिक वॉज लाइक्ड बाय 40% ऑफ पीपल. फोक म्यूजिक वॉज लाइक्ड बाय 30% ऑफ पीपल. दिस इज 30%. Classical music was liked by 10% of people and semi-classical music was liked by 20% of people. अभी आपको यह नहीं मालूम है how many were surveyed. You only know कि एक सर्वे हुआ and you know the percentage. तो based on this percentage, can you give answer about the questions that if we ask for the number of people? What do you think? आप दे सकते हैं. ओके, लेट अस एक्सप्लोर. सो ये आपका पाई चार्ट जो हमने पहले दिखाया था, इट इज सेम. बेस्ड ऑन दिस वी आर गोइंग टू डू सम कैलकुलेशन कि इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड. तो यू नो द परसेंटेज एंड you also you know the number of people. With the base of this concept, can you calculate the total number of people that were surveyed? कर सकते हैं या नहीं? Yes. तो हम क्या कहेंगे? Let the number of people surveyed be, let the number of people surveyed बी एक्स. इस टाइप से आपको लिखना होगा. ठीक है. नाउ सो अब हमें मालूम है एक्स का जो 10% है दैट इज इक्वल टू 20. एक्स का 10% इज 20. ठीक है. सो दिस मीन्स नाउ यू कैन डू द कैलकुलेशन. एक्स इज इक्वल टू 20 इंटू 100 अपॉन 10. 0 0 कैंसिल. 200. सो हाउ मेनी पीपल वर सर्वेड? 200 पीपल वर सर्वेड. और अगर आपको इफ यू वांट टू चेक तो आप क्या कर सकते हैं, 200 का आप 10% कैलकुलेट कर लीजिए. 0 0 कैंसिल. 20 आ गया ना, और 20 यहां पर है. 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक. सो बिकॉज यू नो द नंबर ऑफ पीपल, यू नो द परसेंटेज ऑफ द पीपल दैट लाइक क्लासिकल म्यूजिक, देन यू कैन कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ पीपल. तो हमारा जो टोटल नंबर ऑफ पीपल आया डेट वॉज 200 पीपल वर सर्वेड. ठीक है. सो इस वे में यू हैव टू डू द कैलकुलेशन. मूविंग फर्दर,
Which type of music is liked by the maximum number of people? तो by looking at this pie chart, can you give the answer? है ना, किसका मैक्सिमम है? 40% किसका है? 40% is maximum because 20, 10, 30, 40. तो 40 is bigger, larger value. तो 40% is किसका है? Light music. तो which type of music is liked by maximum number of people? Light music. Next question. If a cassette company were to make 1000 CDs, how many of each type would they make? 1000 CDs उसको बनानी है, तो based on the liking, can you do the calculation? जैसे अगर हम कहें लाइट म्यूजिक के लिए क्या होगा? 1000 का we are going to calculate 40%. This comes out to be 400. तो लाइट म्यूजिक के लिए that company should make 400 CDs. In the same way, you can do the calculation for other type of music like classical. Classical का how will you do? तो क्लासिकल का कितना परसेंटेज है? क्लासिकल का परसेंटेज है 10%. तो 1000 का, तो क्लासिकल 1000 का 10%, 100 CDs. हंड्रेड CDs बनाएंगे तो उनका काम हो जाएगा. In the same way, you are going to calculate folk का, means 1000 into 30 upon 100. तो वो आप कैलकुलेट करेंगे, you will get 300. Same classical, 1000 into 20 upon 100, 200. So these two calculations I have done. The other two you are going to do and find the answer. Next question. A group of 360 people were asked to vote for their favorite season from the three seasons, rainy, winter and summer. Which season got the most votes? तो ये आपका है समर में 90, रेनी में 120, विंटर में 150. तो विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट? 150 वाला, डेट इज विंटर. क्लियर? नेक्स्ट, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर. एंड द थर्ड इज ड्रॉ अ पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन. Now, how are we going to draw central angle? So this we are going to learn today. Central angle हम कैसे बनाते हैं? So हम first we are going to find out the fraction. तो आप कैसे करेंगे? इस टाइप से you are going to make a chart. You are going to write the season, then number of votes, then you have to find the fraction and then central angle. तो फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट वी आर गोइंग टू एड ऑल दीज वैल्यूज. तो 5 + 2 7, 7 + 9 16, 1 2 3. हमें जो टोटल मिला वो 360. एक बार फिर से चेक कर लें. 0 + 0 + 0 0, 9 + 2 11, 11 5 16 एंड 3. अब हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू फाइंड द फ्रैक्शन. तो 90 upon 360, 0 0 कैंसिल, 9 4s are 36. ठीक है? तो मीन्स आया हमारे पास 1/4. 1/4 इंटू 360 करेंगे क्योंकि हमें एंगल निकालना है ना, तो 360 डिग्री. तो 4 9s are 36. तो ये हमारे पास आया 90 डिग्री. In the same way, we will calculate for this 120 upon 360, 0 0 cancel, 12 3s are 36. हमारे पास आया 1/3. तो 1/3 into 360. तो ये हमारे पास आई वैल्यू 120 डिग्री. And then
one more value we are getting, that is 150 upon 360. 0 0 कैंसिल, तो ये आएगा आपका 5 3 जा 3 5 जा 15, 3 से जाएगा, एंड 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 upon 12. अब 5 upon 12 into 360, तो 12 3 जा 36, 0, तो हमारे पास आया 150 डिग्री. तो हमें जो वैल्यूज मिली हैं वो हमें क्या मिली है? 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री. नाउ अब पाई चार्ट हाउ वी विल ड्रॉ, हम क्या करेंगे? सबसे पहले वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ सर्कल. तो वी आर गोइंग टू यूज द कंपास, और कंपास में की हेल्प से हम पहले एक रेडियस लेकर वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ सर्कल. इस टाइप से हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे. नाउ हम ये जो हमने सर्कल ड्रॉ करा है इसका हम सेंटर पॉइंट लेंगे, एंड वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ रेडियस. सो अगेन वी विल टेक अ स्केल, एंड फ्रॉम द रेडियस एक उसका रेडियस बनाएंगे. ठीक है. नाउ हम इस पर अपना D लेंगे. हमारा एक 90 डिग्री आया था, तो हम यहां से 90 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करेंगे. सो 90 डिग्री का एंगल के लिए ये हमारा 90 डिग्री का एंगल इस टाइप से यहां पर बन जाएगा. सो ये जो हमारा 90 डिग्री की वैल्यू किसकी थी? अगर हम देखें इसको, तो समर्स को हम 90 डिग्री से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. नाउ रेनी सीजन 120 डिग्री. तो रेनी सीजन 120 डिग्री के लिए ये आ गया हमारा समर. अब इस 90 डिग्री से वी विल ड्रॉ 120 का डिग्री एंगल. तो वी आर गोइंग टू शिफ्ट अवर D लाइक दिस, यहां पर रखेंगे. दिस इज द बेस. और अब आप देख लीजिए, ये अगर हम एक नॉर्मल ले रहे हैं तो ये बेस है, इसकी साइड में जाएंगे तो एक्यूट एंगल बनेगा. 120 डिग्री के लिए वी हैव टू मूव दिस साइड. तो यहां पर रख के 120 डिग्री एंगल हमें यहां पर मिल रहा है. ठीक है. वी आर गेटिंग हियर. इस पॉइंट की हेल्प से वी आर गोइंग टू ड्रॉ द लाइन. सो अगेन वी विल टेक द स्केल, एंड इट डजेंट मैटर कि हमारा पॉइंट काफी दूर है, हम तो अपने सर्किल तक का ही लाइन ड्रॉ करेंगे. सो इस टाइप से यू आर गोइंग टू सेट द स्केल, एंड यू आर गोइंग टू तो ये जो आपका आ जाएगा, ये यहां से 120 डिग्री का एंगल आ गया. ठीक है. तो ये जो आपका 120 डिग्री क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेनी सीजन.
ठीक है। सो ये आपको रिप्रेजेंट करेगा रेनी सीजन। तो एज वी विल मूव, तो ये हमारा आ गया रेनी सीजन। एंड देन ये जो हमारा जो रेस्ट ऑफ बचा है, तो ये 90 है, ये 120 है और ये हमारा 150 बचा। तो अगर हम टोटल करेंगे तो आप देखिए 150, 120 और 90, 360 आ गया ना। सो ये जो हमारा है ये विंटर को रिप्रेजेंट करेगा। दिस विल रिप्रेजेंट विंटर। सो इन दिस वे वी मेक अ पाई चार्ट। कि एक बार रिपीट करते हैं, वी ड्रॉ अ सर्किल, उसमें हमें एंगल मिल रहा है, वी ड्रॉ दैट। तो हमें सबसे पहले 90 डिग्री का हमने करा, फिर 90 डिग्री का ये बेस लेकर वी हैव ड्रॉन 120 और 120 का फिर जो रेस्ट ऑफ बचेगा डेट विल बी ऑफ 150। वो हमें मार्क करने का नीड ही नहीं है इफ वी हैव मार्क 2। इन दिस वे वी ड्रॉ द पाई चार्ट। So what did we learn today? Today we learned how to do the calculation once more. पहले भी कर चुके हैं लेकिन आज हमने फिर से एक कैलकुलेशन करी। एंड उसके बाद हमने क्या सीखा है, हमने ये सीखा हाउ टू ड्रॉ द पाई चार्ट। थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहें, आपकी बुक्स में भी इंस्ट्रक्शंस आर गिवन, आप हमारा भी देखें एंड देन प्लीज कीप ऑन ट्राइंग, क्योंकि जितना आप खुद ट्राई करेंगे the more you will try, the more you will learn. In the next session, अभी इस exercise में से we are going to do some more questions, but that I will do in the next session. Till then, जितना करा है, please do revise. Take care. Bye.